اب رمضان آئی تو لوگ تھک گئے تو بھول جاتے ہیں. ابھی سے رمضان کا شوق سوار ہے. بزرگان محترم، جو موضوع چل رہا ہے گزشتہ پیر سے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، لیکن یہ اس کی آخری مجلس ہوگی جتنی بھی باتیں بیان ہو جائیں، کیونکہ اب شعبان بھی شروع ہو چکا ہے تو کچھ باتیں اس تعلق سے بھی اور رمضان المبارک بھی قریب ہے، تو انشاءاللہ پیر سے اب اس تعلق سے کچھ گفت و شنید کریں گے انشاءاللہ العزیز. جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس تعلق سے آج آپ کو ایک دیندار شاعر جن کی شرعی داڑھی بھی تھی، ٹوپی بھی لگاتے تھے، نعت گو شاعر بھی کہے جاتے ہیں، جس سے میری مراد ہے امیر مینائی. کیا نام ہے سعد اللہ صاحب؟ ارے کہاں امیر یار، امیر. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، آج کل جو بھی امیر ہے وہ عامر بن جاتا ہے نا، امیر عامر بن جاتا ہے. ہاں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا امیر بنو عامر مت بنو. عامر یعنی ڈکٹیٹر. عامر یعنی کیا ہے چودھری صاحب؟ ہاں، چودھری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، بہت دنوں بعد جو ہے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. کہنے میں تو لوگ ننگے اسلاف کہتے ہیں، لیکن سامنے والے کو ننگا کر دیتے ہیں. وہ کہنے اور لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اصل اندر میں ہونا چاہیے. ہاں، تو حضرت فرماتے تھے کہ امیر تو بنو عامر مت بنو، اور فرماتے تھے ذمہ دار بنو جمعدار مت بنو. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ذمہ دار بنو لیکن کیا مت بنو؟ سمجھ رہے ہو نا جمعدار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو اس لیے سعد اللہ صاحب آپ نے صحیح سنا. اور ایک تو آپ عمر رسیدہ اور پھر دور بیٹھتے ہیں تو کہاں صحیح سنائی دے گا. تو خیر، بہرحال امیر مینائی تو ان کا ایک کلام ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ آج 8:45 تک ختم کر دیں گے انشاءاللہ. امیر مینائی لکھتے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اللہ اکبر. پہلے ہی شعر میں کمال کر دیا ہے. کیا کہا پتہ ہے؟ بڑا جاہو جلال نام تھا، روپیہ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، سب کچھ جو چاہیے ہوتا ہے تقریباً ہر آدمی کو، تو وہ سب کچھ تھا. لیکن موت نے کیا کر دیا؟ سب کچھ ختم کر دیا، نام و نشاں مٹا دیا. تو کہتے ہیں کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جو مالدار ہوتے ہیں تو ذرا سر اونچا ہوتا ہے نا. آسمان کہاں ہے آفتاب بھائی؟ ہاں، آفتاب بھی اوپر ہوتا ہے تو اوپر ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کیا ہے؟ وہ کھا گئی. ایسے لوگوں کو بھی ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ گل نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے. پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے کہ نہیں. نہ گل تو سمجھتے ہیں نا، نہیں سمجھتے تو وہ اتل والا گل حمید اپنا ہے. تو نہ گل نہ گنچے، نہ گل تو سمجھ گئے ہوں گے، پھول کو کہتے ہیں، گنچے بھی. اور نہ بوٹے یعنی پودا، درخت ہیں. صدیق بھائی پودا جانتے ہو نا؟
એટલે ગુજરાતીવાળા હરસિમભાઈ પોદાની, હા, જે આપણે બધા છે छोड़, हाँ देखो इलियास भाई ने कहा कि छोड़, बिल्कुल छोड़। तो जो छोड़ बोलते हैं ना, वो मीर तकी मीर, जिनको बाबा गज़ल कहा जाता है, तो उन्होंने कहा है, हमारे एक बुजुर्ग सुनाते हैं, इंडिया को आज़ाद कराने में जहाँ औरों ने पानी बहाया वहाँ हमारे उलमा ने और मुसलमानों ने खून बहाया, लेकिन स्कूलों में अब पढ़ाया नहीं जाता। हम छोटे थे अशफाक भाई हैं, तो 3-4 नाम तो उस वक्त थे, अब तो वो भी खत्म कर दिए गए। क्या बुलाते थे? मौलाना अबुल कलाम की, अरे बोलियो मत, हैं, और फिर क्या है, मौलाना शौकत अली, है ना, और किसका नाम आता है? मौलाना लियाकत अली, है, मोहम्मद अली जौहर, हाँ, खैर ये चंद नाम थे, तो सब मिटा दिया गया निशान। दलील क्या है? आप चले जाओ कहाँ पर, हाँ, जज़ाकल्लाह हाफिज़ इम्तियाज, बम्बई चले जाओ, किस पे? गेटवे ऑफ इंडिया पे, वहाँ जरा जाके देखो किन के नाम है फारूक भाई? तो आज भी वो शहादत और गवाही जो है वो देती है। और इन लोगों की आदत है, इन्होंने दुनिया में जहाँ कहीं हुकूमत की, 100 साल के बाद ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देते कि हम क्या करके आए। तो इनकी किताबें भी पढ़ो, लेकिन मुसलमान उससे वाकिफ ही नहीं है। एक तो न पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और न हम पढ़ना गवारा करते हैं, पढ़ने की जहमत भी नहीं लेते। तो मीर तकी मीर का एक शेर है, एक गज़ल का एक जो है वो टुकड़ा है, तो हमारे बुजुर्ग वो सुनाते हैं कि भाई हम मुसलमानों की हालत यही है कि मुल्क को, वतन को, देश को हमने आज़ाद कराया, लेकिन हम ही वाकिफ नहीं हैं। तो मैं आपको बूटे पे से समझा रहा हूँ। तो मीर तकी मीर के कलाम का पहला जो है वो टुकड़ा है, तो वो लिखते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, तो ये बूटा आया, छोड़ पत्ते, तो आप जानते हैं। तो कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने तो गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। समझ आया? क्या कहते हैं कि भाई फूल को मालूम होना चाहिए, लेकिन फूल को मालूम नहीं है, पूरा जो बाग है उसको क्या है मालूम है। कहा कुर्बानी मुसलमानों को मालूम होनी चाहिए कि वतन को और देश को किसने आजाद कराया, हमें मालूम नहीं है, जिनको नहीं मालूम उनको मालूम है, इसलिए वो पढ़ाते हैं जो वो छुपाना चाहते हैं ताकि वो सामने ना आए। खैर, तो ये कहा अमीर मीनाई ने कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजा कैसे कैसे। खिजा जानते हो क्या? पतझड़, पानखर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको पतझड़ जो है वो बोलते हैं। इकबाल ने कहा है ना, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा ईमान की दावत देना है, हाँ, ईमान पे कायम रहना। ये कहते हैं कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मस्जिद तो आना पड़ेगा, चाहे मौसम 12 हो या फिर स्नो गिरा हुआ हो, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, ईमान की दावत हर मौसम में देनी है, मस्जिद हर मौसम में आना है। तो इकबाल कहते हैं कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अगला मिसरा, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अब इसकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, आप समझ जाइए, आज ऐसा ही है। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा
لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے خزاں کے پتجھڑ۔ تو خیر لمبا کلام ہے، وقت نہیں ہے، تو میں 2-3 مصرے سنا کر آئندہ پھر کبھی آپ کو یہ کلام سناؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے۔ یہاں درد سے ہاتھ سینے پہ رکھا، امیر مینائی کہتے ہیں کہ یہاں درد سے ہاتھ سینے پہ رکھا، وہاں ان کو گما گزرے کیسے کیسے، کہ ہمارا حال کیا ہے اور سامنے والا سمجھتا کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا کچھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں درد سے ہاتھ سینے پہ رکھا، وہاں ان کو گما گزرے کیسے کیسے۔ آخری مصرع آج کے لیے، پھر انشاءاللہ باقی کبھی آگے وہ کہ لکھتے ہیں، ہزاروں سال کی ہے بڑھیا یہ دنیا، ہزاروں سال کی ہے بڑھیا یہ دنیا، مگر طاقتی ہے جواں کیسے کیسے۔ بڑھیا ہے لیکن جوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا نا، جب حضور کو سفر ہوا کیا معراج، یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے امیر مینائی کا، حدیث کی طرف، اس کا مفہوم ہے، سنو خالی اشارہ کریے۔ حضور جب معراج کا سفر ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک بڑھیا کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ بڑھیا کو دیکھا ایک۔ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اور صدیق بھائی سفر معراج میں حضور کے ساتھ کون تھے؟ ہاں جزاک اللہ ذاکر بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ تو جب بڑھیا نے آواز دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نورانی بھائی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ حضرت اس کی طرف مت دیکھنا۔ کیا فرمایا؟ اس کی طرف مت دیکھنا، آگے چلو، بالکل اس کی جانب توجہ مت کرنا، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ راحت اندوری نے بھی کہا ہے نا کہ وہ بلاتی ہے مگر جانے کا تو خیر بہرحال دنیا، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہی حضور سمجھانا چاہتے ہیں اس میں جبریل، کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ فرمایا دنیا میں رہو، پیسے بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن محبت کس کی غالب ہو؟ دین دنیا پہ غالب ہونا چاہیے بس۔ باقی جتنا چاہے کماؤ، شریعت منع نہیں کرتی، طریقہ حلال ہو، اور محبت کس کی حسن بھائی زیادہ ہو؟ دین کی محبت جو ہے وہ غالب ہو کس پر؟ دنیا پر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خیر وہ بڑھیا نے آواز دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الیاس بھائی، تو منع فرمایا جبریل امین نے کہ ابھی سمجھ چچا دیکھیو مت اس کی طرف، لیکن آپ میری طرف دیکھیو ابھی۔ تو چلے آگے، ایک آدمی ملا راستے میں، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودھری صاحب کیا دی؟ آواز دی۔ تو جبریل امین نے پھر فرمایا کہ آقا یہ جو آدمی آپ کو آواز دے رہا ہے وہ تو عورت تھی، وہ بوڑھی عورت تھی وہ شکل میں، اور عبدالحفیظ چچا یہ کیا تھی؟ آدمی۔ فرمایا اس کی طرف بھی توجہ مت کرنا، آگے چل دیے۔ جب آگے چلے تھوڑا، 3 بزرگ شخصیت نظر آئی۔ کتنی؟ 3۔ اور انہوں نے آقا کو سلام کیا۔ کیا کیا بھائی؟ سلام کیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ ان کے سلام کا جواب دے دے۔
اب آدمی کو جستجو ہوتی ہے، ہمیں کوئی کسی کام سے روکے تو رک تو آدمی جاتا ہے، لیکن بعد میں پوچھتا ہے کہ بھائی ہو کیا، پوچھتا ہے نا کہ بھائی ایسا کیوں مجھے روکا گیا. اور دیکھیے اس سے پتہ چلا فوراً نہیں پوچھنا چاہیے. ઇલિયાસ ભાઈ પણ આપણાથી તો થોભાય જ નહીં. તો કે હું તો અહીંયાથી એક ડેંગુ અગાડી નહીં વધારા, એક ડગલું મારું આગળ વધે નહીં, જ્યાં સુધી મને તું કહે નહીં કે આવું કેમ, है ना आसिम भाई. तो हम तो फौरन, सूरह कहफ में भी है ना, हजरत खजीर न करने के काम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजर में वो करते जा रहे और हजरत मूसा से सबर नहीं हो रहा है. तो कहा कि कोई बात नहीं, अभी ठहरो, आपको बाद में बताएंगे. फौरन बताया या बाद में बताया? बाद में बताया ना. આપણે ત્યાં એમ બી દુનિયામાં મશહૂર છે, કેટલા ચાન્સ જાગીરભાઈ દેવામાં આવે? 3 દેવામાં આવે, હે ને? 3 ચાન્સ આમતौर पे देते यार लोग. તે કે લાઈ મેં 3 વખત એમ કે ચાન્સ આપ્યા, એમ કે એ હવે સુધરે એવું નહીં મળે, કૂતરાનું પૂછવું વાંકું તે વાંકું જ, એમ કે એ હવે હીધું થાય એવું નહીં મળે. એમ 3 વખત એમ કે એને ચાન્સ દીધો, એમ કે तो 3 मतलब चांस है, इसलिए तलाक भी 3 है कि सुधरवानी हो तो सुधरी जाए. तो 3 मरतबा है, तो 3 चांस जो है वो दिए जाते हैं. तो हजरत खजीर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम को नूरानी भाई कितने चांस दिए? अरे बोलो यार, 3 चांस दिए. तो चांस देने का, इसलिए शरीयत कहती है कि एक ही मरतबा में 3 खत्म मत कर दो, खाली इशारा. समझ आ रहा है? हाँ, एक बात यहाँ याद रखो खाली, जैसे इस्लाम में निकाह का मुफस्सल तरीका है कि मर्द और औरत, लड़का और लड़की जब निकाह के मुकद्दस रिश्ते में बंधने वाले होते हैं, इस बंधन में तो शरीयत ने एक खास तरीका क्या किया है? मुकर्रर किया है. अशफाक भाई बताया है हमें. फिर आदमी निकाह के बंधन में बन सकता है, वरना नहीं बन सकता. तो याद रखिए, मुझे और आपको और मुसलमानों की एक बड़ी जमात, उनको सिर्फ आधी बात मालूम है. हम ये समझते हैं कि निकाह का तरीका शरीयत ने बताया है, तलाक देવું તો હવે આપણી મરજી, જ્યારે આપણા મનમાં આવે ત્યારે દેવાનું ને જેટલી આવે તેટલી દેવાનું. याद रखो, ये नहीं है. शरीयत ने बाकायदा तरीका बताया है मियाँ और बीवी कैसे अलग होंगे. इल्ला माशाल्लाह कोई फॉलो करता है. सबसे पहली शर्त क्या है? उसी पे फॉलो नहीं करते हम. मियाँ बीवी, लड़का लड़की, हस्बैंड एंड वाइफ जो मुकद्दस रिश्ते में हैं, अगर वो अलग होना चाहे तो इंतजार करना पड़ेगा. किसका? पाकी का. हाँ, जज़ाकल्लाह. अब मासिक भी कह सकते हैं, हैज भी. पाकी का. औरत अगर हैज में हो, शरीयत का हुक्म यह है कि अभी उसको तलाक नहीं देना है. और पाकी में भी हो तो अगर औरत से हस्बैंड ने क्या कायम किया है? ताल्लुक, तब भी इसको तलाक नहीं देना है. क्यों? अगर हमल ठहर गया तो बेचारी की इद्दत लंबी हो जाएगी, 7 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने. और इद्दत कोई आसान थोड़ी है गुजारना. इसलिए कहा कि इंतजार करो. पाकी में औरत को तलाक दो. किस में? पाकी में. और पाकी में भी वो कि मर्द और औरत ने मुलाकात न की हो. समझ आ रहा है? खैर, खाली मैंने इशारा आपको कर दिया. तो उसका भी एक तरीका जो है वो मौजूद है. तो 3 चांस दिए थे. किसने? हजरत खजीर ने. फिर फरमा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, कुरान कहता है हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, कि अब मेरा और तुम्हारा, हाँ, कोई जोड़ नहीं है आपस में, है साथ, कि अब अपनी निभेगी नहीं आपस में. तो क्या हो जाओ, તમે તમારા રસ્તે ને અમે અમારા રસ્તે. આપણે સિદ્દીકભાઈ કહે છે એમ કે તમારા હજરત મૂસા અલૈહિસ્સલામને હવે કહ્યું કે જે તમે 3 જગ્યાએ સબર નહીં કીધી ને, હવે તમે સાંભળો કે અસલ વાક્ય શું હતો. तो खैर, इसलिए मैं ये कह रहा था कि कोई बड़ा आदमी कभी रोके ने तो एकदम से पूछ नहीं लेने का. क्या करने का? सबर करने का. कुछ न कुछ बड़े आदमी का उसके पीछे क्या होगा? मंशा होगा. हाँ, इसलिए वो ऐसा
جو ہے وہ کر رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں پوچھا جبریل سے، ورنہ پوچھ سکتے تھے کہ تم نے مجھے کیوں روکا بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہونے سے، مرد کی طرف متوجہ ہونے سے. اور پھر جبریل امین نے وہ 3 نورانی شخصیت نظر آئی تو خود فرمایا کہ اب ان کو سلام کا کیا دو، جواب دو. اب فرمایا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی نا وہ دنیا تھی. وہ کیا تھی؟ دنیا تھی. فرمایا کہ اب دنیا کی اتنی ہی عمر رہ چکی ہے، اتنی عمر باقی ہے جتنی اس عورت کی، پھر کیا آ جائے گی؟ قیامت جو ہے وہ آ جائے گی. اس لیے حضور نے ایک روایت میں فرمایا، ادھر دیکھو مفہوم ہے، انا، حضور نے فرمایا انا والساعہ، کہ یہ میں ہوں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا، اور والساعہ، ساعہ یعنی قیامت، کہاتین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں اور قیامت کیا ہے؟ دونوں ساتھ ساتھ. ساتھ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بالکل ساتھ، یعنی اب زیادہ درمیان میں وقت نہیں ہے. تو بس یہ ہم آخری امت ہے اسی لیے کہتے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے. تو فرمایا یہ دنیا ہے، تو اگر تم اس کی جانب متوجہ ہو جاتے آقا سے، فرمایا علماء نے کامنٹری کرتے ہوئے لکھا تمہاری امت بھی دنیا کی طرف مائل ہو جائے. اشفاق بھائی આપણે તો એમ બી મારી છે હરત તો હું થાતે આપણું ہیں میں بھی اس سے خالی نہیں ہوں، یاد رکھنا. ہاں اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور سورہ والفجر میں کیا فرمایا؟ وہ کیا ہے حافظ صاحب؟ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. ہاں جمع. تو یہ تو دنیا کی محبت تو ڈال دی گئی ہے، اس سے جو ہے وہ بچنا پڑے گا. فرمایا وہ آدمی کون تھا؟ فرمایا وہ آدمی شیطان تھا. کون تھا؟ شیطان تھا. اگر آپ اس سے بات چیت کر لیتے، متوجہ ہو جاتے، یہ دونوں تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، اس کا اثر کس پہ پڑتا؟ تمہاری امت پہ پڑتا. بڑوں کا اثر آتا ہے نا چھوٹوں میں. આપણે તા કે બાપ જેવા બેટા ને વડ જેવા ટેટા. હવે એ તો આપણી આ મિસાલ આપણે ઓલાદને અપાય જ નહીં, કારણ કે એને ટેટા જોયેલા જ નહીં. હે આફતાબભાઈ? तो अब जो है वो मिसाल जो है वो कैसे दे रहे हो यहाँ पे सब, तो कैसे दे रहे हो? तो वो असर जो है वो आता है. क्या आता है? हाँ, इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए ना, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा. कुरान कहता है, अल्लाह फरमा रहे कि दरख्त से खाने की बात दूर रही, करीब भी मत होना, लेकिन हो गए. क्यों? भूल गए. फनसिया आदम, कुरान कह रहा है फना सिया चौधरी साहब आदम, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूल गए. तो फरमाया कि अव्वलुन्नास, सबसे पहला जो था आदमी थे वो क्या थे? भूलने वाले थे. इसलिए આપણે બધા ભૂલંગડા. तो क्या आ गई? भूल आ गई. इसलिए अभी रोजा आ रहा है, रोजे में क्या माफ है? खाना माफ है. माशाअल्लाह जाकिर भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह. खाना माफ है. બધા હામદીમાં પહોંચી જવાનું સિદ્દીકભાઈ. अरे कहाँ खाना माफ है? भूल माफ है. क्या माफ है? भूल माफ है. देखिए दो चीजें हैं, एक है गलती माफ नहीं है, भूल माफ है. और क्यों माफ? बाबा आदम हमारे जद्दे अमजद हैं, बाजी भूल कर ली तो अल्लाह आप लोगों की बख्शी देगा. हैं कि अब क्या आएगी? बाप जेवा बेटा ने वड़ जेवा तेटा, वो आएगी ना. वो असरात जो है वो क्या है? वो आएंगे, वो मुंतकिल होंगे. हमारे मुफ्ती उमर फारूक साहिब दामद बरकातुहुल आलिया एक दिन हमारी मस्जिद में तशरीफ लाए थे. कई मरतबा आए, लेकिन एक मरतबा की बात है, वो बैठे थे तो एक साहिब मेरे पड़ोस में थे. तो मुफ्ती उमर फारूक साहब भी पड़ोस में थे. मुझे बताने लगे कि ये मुफ्ती साहब का बेटा है. तो वो दिखता है मुफ्ती साहब की जैसा ही है. तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं जानता था. मैं कहा खामोखा क्या जरूरत कहने की, कि हमारे पास हर बात में बोलने का, चुप नहीं रहते. ભાઈ વગર લે દે મસ્જિદમાં પંચાયત કરવાની જરૂરત શું છે ભાઈ? આ કેવો કે મસલો છે, કહેવાની જરૂરત છે કે આ મુફ્તી સાહેબનો કોયરો? મેં કે મેં તને પૂછ્યું તો તોય કહેવાનું, વગર પૂછે જ ચાલે. हैं जैसे क्लेप्टन की मस्जिद में हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे. तो एक आदमी हाफिज साहब अपने घर से क्या बना के लाए? हजरत के लिए चाय बना के लाए.
جیسے ہمارے انصاری بھائی ماشاءاللہ جو بھی بزرگ ہمارے یہاں رمضان میں آتا تھا تو چودھری صاحب کیا بنا کر لاتے تھے ان کے لیے؟ چائے بنا کر لاتے تھے نا. ہاں چائے پکا کر لاتے تھے. تو وہ چائے بنا کر لائے. چائے میں انہوں نے کیا ڈالی تھی؟ جنجر, آدو جنہیں આપણે કહીએ, ادرک. તો હઝરત ને वो પીના ફારૂકભાઈ શરૂ કિયા. હવે હેરાને તાલાવેલી થાય કે હઝરત મને પૂછતા કેમ નહીં કે આમાં હું નાખે. આપણો આ જ પ્રોબ્લેમ, આપણાથી રહેવાય જ નહીં, આપણને ફૂલ તાલાવેલી. तो वो हजरत यूं पीते हैं तो हजरत को वो यूं देखता है, हजरत फिर कप नीचे रखते हैं, फिर दूसरा तो वो यूं देखता है, फिर रखते हैं. वो हजरत को ही देख रहा है. तो चेहरा दिल का आईना होता है. खत का मजमून भाप लेता हूं, शायर कहता है लिफाफा देख कर. हैं हाँ, और हमारे हजरत फरमाते थे लिफाफा. हजरत मौलाना मोहम्मद साहब अभी तशरीफ लाए, वो जानेंगे. लाम अरबी में मुख्तलिफ फायदा देता है. हजरत फरमाते थे लिफाफा का नाम लिफाफा क्यों है पता है? इसमें लाम लामे मनफात है. अगर लाम हटा दिया जाए तो फाफा, यानी लिफाफे में अगर फारूक भाई ने नोट न रखी हो, खाली यूं हदिये में दे तो फिर फाफा है. और अगर क्या रखा हो हसन भाई, पैसे हो तो फिर क्या है? वो लिफाफा. कि लाम लामे मनफात है, कि वो फायदा जो नहीं. तो हजरत को देख रहा है कि हजरत बोलते क्यों नहीं, पूछते क्यों नहीं कि इसमें क्या डाला है. तो उससे रहा नहीं गया है नूरानी भाई. तो कहने लगा हजरत मैं घर से आपके लिए चाय बना कर लाया ना, आज मैंने उसमें अदरक डाली है. क्या डाला है? अदरक. हजरत ने फौरन फिर बदी जवाब दिया, बंदे को पहले ही घोंट पे इदराक हो चुका. इदराक का माना है पता चल जाना. हजरत ने फरमाया कि पहले ही घोंट पे पता चल चुका. काय को कहने का? तो वो भी मुझे कहने लगे कि आप मुफ्ती साहब में से. तो मुफ्ती साहब ने भी सुना, मैंने जवाब दिया तो वो भी हंसने लगे. तो मैंने कहा कि मोरना बेजा ने चीतरવું नहीं पड़े. क्या कहा मैंने? मोरना बेजा ने चीतरવું नहीं पड़े आपके साथ. तो वो पता है. तो हजरत आदम का असर भी हमारे अंदर आया, इसलिए भूल माफ है, गलती माफ नहीं है. रोजे में याद रखना, भूल और गलती का क्या फर्क है समझ लो. भूल किसे कहते हैं और गलती किसे कहते हैं. तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भूल की थी, वो माफ है. समझ आ रहा है? वो भूल है. वैसे कुरान एक और मकाम पर इसको यूं ताबीर करता है, वह असा आदम रब्बहु फगवा. असा, अल्लाह अकबर. और एक तरफ है फनसिया आदम वलम नजिद लहू अज़मा. हाँ, कुरान दोनों बातें कह रहा है. वो तत्बीक उसमें देनी पड़ेगी, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है. तो सुन लो, भूल और वो क्या माफ है. जाकिर भाई की बात एक तरह से सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं जो उन्होंने कही. वो बात क्या है भाई? रोजाना एक आदमी, सिद्दीक भाई की मिसाल ले लो कि मिनी कप करवा जाए અને ઘેર જાય અને ઘેર જઈને ફ્રીજ ખોલીને જતાના હાથે શું કરે? પાણી પીએ. हाँ, तो उनकी आदत है. या चलो कुछ खाना खाते हैं. अब रमजान का पहला रोजा है, आदमी को एकदम से याद नहीं रहता. वो जॉब पे से गए घर पे है, अब समझते चाहे और जाकर क्या खोला? फ्रीज खोला और पानी पीना जो है वो शुरू कर दिया. वो ये भूल है. ये क्या है? ये भूल है. या तो आदमी को खुद अचानक याद आ जाता है, तो अब याद रखो. लेकिन भूल कब है? अभी मुंह में है तो उसको फेंक दो भाई. हाँ हाँ क्यों, तो भूल ही गया है, तो वो नहीं चलेगा. है तो बिंदा से बोले एम के भूली गेलो एम के पाछो पी हो जाए पाछो है, तो वो कुछ चलेगा बोलेगा नहीं वो. और पीछे से अगर किसी ने बोल दिया भाई बीवी आ गई, बेटा आ गया, बेटी कि बाजी તમે શું કરો यार, कहेंगे आज तो रोजा है इनके रमजान में, आज तो रोजा है, क्या कर रहे हो? तो याद रखो फौरन अगर वहां तक ले भी गए हैं तो क्या करना है? जैसे बचपन में हम एक खेल खेलते थे, पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं. तो एक खेल होता था जाकिर भाई के स्टैच्यू. तो आदमी जिस पोजीशन में है उसको क्या हो जाना पड़ता था? खड़ा. और अगर उसने चेंज किया तो क्या पड़ता था? हाँ, मुक्का जो है पड़ता था, मार पड़ा. स्टैच्यू. तो ये है स्टैच्यू. पीछे से आवाज दी कि पप्पा, अथवा घर वाली है तो कि सिद्दीक, जाकिर है, अशफाक, तो क्या ला हूं करे हम कहते उसको भूली दिया, तो उसको जो है वो रख देना. समझ आ रहा है? ये भूल है, ये माफ है. अब रोजा हो गया, रमजान के बाद कज़ा भी नहीं करनी है. और गलती इलियास भाई क्या है? याद है आदमी को,
یاد ہے آدمی کو کہ میرا کیا ہے؟ روزہ ہے، اور پھر بھی احتیاط نہیں کی اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ غلطی ہے. یہ کب ہوتی ہے؟ وضو میں اور غسل میں. یاد رکھو، وضو میں پسندیدہ ہے غرارے کرنا. کیا کرنا؟ غرارے کرنا وضو میں پسندیدہ ہے. لیکن میں نے تو ابھی کسی کو نہیں دیکھا. پہلے بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا، وہ غرارے کرتے تھے. ادھر دیکھو میری طرف، غرارے کیسے کرتے تھے پتہ ہے؟ اس کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ مسواک ہے. وہ زبان پہ گھستے تھے. کس پہ گھستے تھے؟ زبان پہ. اور وہ حلق سے قریب تک بھی فاروق بھائی وہ کیا دیتے تھے؟ وہ آواز ایسی آتی ہے. اس لیے ان کو بلغم بھی نہیں ہوتے تھے. હા પણ હવે તો આપણે બધા તરક્કી याफ्ता है. हाँ, वीआईपी લોકો આપણો મિજાજ भी वीआईपी. तब इसको तो गलत समझा जाता है. लेकिन हर हजू फ्रेश है. तो क्या है वो जो कहते तो उससे वो सफाई भी खूब होती थी. उसको वो फेंकते. ये पसंदीदा है, जरूरी नहीं है. फर्ज गुसल उसमें जरूरी है. याद रखना, किसी पर गुसल फर्ज हो जाए तो मेरी तरफ देखो, गुसल में कितने फर्ज है? 3 है. हमारे गांव में मशहूर है अशफाक भाई कि एक साहिब, मैं नाम नहीं ले रहा, दोनों के नाम याद है. अमीर साहब ले गए जमात में અને એને પૂછ્યું એમ કે ગુસલમાં ફરજ કેટલા? તે કે 3. તરત જ ફરતે કેવું હું તે કે ટવાલ ખાવું ને બાલ્ટી હે तो क्या तने जमात में लावा जो जूतो. तो क्या है वो 3 जो है वो फर्ज. याद रखो, गुसल फर्ज में पूरे मुंह में पानी पहुंचाना जरूरी है. वो वुजू की तरह नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा. इधर मेरी तरफ देखो, पानी लो और यूं भी करो ताकि पूरे मुंह में पानी को क्या करना है? घुमाना. ये फर्ज है. करते हम लोग? करते हो तो बहुत अच्छा है, वरना तो वही वो आदत पड़ गई है. तो वो 3 फर्ज है. और फिर नाक में पानी डालना. तो नाक में भी वो कहा कि यहाँ ये जो हड्डी है ना, यहाँ तक के हिस्से को तर करना है. हड्डी नजर आ रही है, वहां तक के हिस्से को. तो यूं करके थोड़ा सा खींचो, बहुत ज्यादा मत खींचना वरना अल्लाह आपको ऊपर खींच लेगा. समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा खींचना है, वरना पानी कहाँ चढ़ा जाता है? ऊपर जो है वो चढ़ जाते हैं. और ऊपर चढ़ जाए तो भाई ऊपर चढ़ गया. इसलिए ये याद रखो, ये जरूरी है कि वो ये करके उसको ऊपर चढ़ाओ. लेकिन रमजानुल मुबारक में रोजा शुरू हो चुका है तो फुकाहा ने मना लिखा है कि आम दिनों में जो करते थे वो मत करो. क्यों? डर किस बात का है? पानी क्या हो जाएगा अलग से? हाशिम भाई हसन भाई क्या होगा? नीचे चला जाएगा. और नीचे चला गया तो रोजा रहेगा? ये टूट जाएगा. इसलिए वुजू में भी गरारे मत करो और गुसल में भी कोशिश तो करो पानी पहुंचाने की, लेकिन मुबालगा, इसको क्या बोलते हैं? मुबालगा करना. तो रोजे की हालत में फुकाहा ने मुबालगे से मना किया है ताकि उसका रोजा खराब ना हो जाए. अगर पानी चला गया गलती से तो ये रोजा टूट जाएगा. रोजा क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा. तो गलती और भूल का फर्क समझ आया? भूल किसको कहते हैं? आदमी को याद है ही नहीं सिरे से. और गलती किसको कहते हैं? याद है लेकिन अनहोनी हो गई. क्या हो गई? जो नहीं होना था वो हो गया. अब सिर्फ कज़ा है कि कफ़ारा, वो भी तो पूछो. हाँ, सिर्फ कज़ा है. 1 से हो जाएगा. नहीं 60 नहीं यार, हाथी बुद्धि नाठी हैं. आप जो है वो रहने दो. 60 जरूरी नहीं है. 60 बहुत मुश्किल है. हाँ, बहुत मुश्किल है. 60 रोजे एक साथ रखना कोई आसान नहीं है, कोई आसान काम नहीं है. तो इसमें कफ़ारा तो नहीं आएगा. क्या आएगा? कज़ा. यहाँ एक और मसला आता है, वो याद रखो, वो लोगों को मालूम नहीं होता. ये गलती तो हो गई, रोजा टूट गया, उसको पता चल गया, चलो जोहर की नमाज में आया यहाँ बंदा नमाज पढ़ने के लिए और ऐसा किया, हो गया. तो अभी ऐसा नहीं कि घर जाकर
હા પ્રહલાદજીને ફ્રીજ ખોલ્યું કે એમબી તો ગયો જ એમ કે હે હા ઇફતારી કે એમબી તો એમ કે ગયેલો જ છે એમ કે ચાલો 99 100 પૂરા તો તેવું નહીં થાય સમજ પડી हाँ फुकहा ने लिखा है इमसाक रोजेदार की तरह इसको शाम तक रहना वाजिब है याद रखना क्या है वाजिब है अब उसको भूखा रहना है रोजेदार की तरह किसकी मुशाबहत इख्तियार करनी है रोजेदार की याद रखना और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है बहुत सौ के लिए मिसाल लेके फिर बात खत्म करता हूं 5 मिनट ज्यादा हो गई तो आपसे जो है वो माफी चाहता हूं तो ये सब आएगा मुसाफिर हालत सफर में खाना जायज है આપણે એરમાં બેઠલા હતા ને આયું ખાવાનું તો ખાઈ લીધું कोई વાંધો नहीं है लेकिन घर पे आ गए और अभी दोपहर के 4 बजे हैं और रोजा 7 बजे खुलेगा तो अभी नहीं कि 3 घंटे तो खूब खाओ अब इसको मगरिब तक जब तक रोजा इफ्तार न हो रोजेदार की तरह वक्त गुजारना वाजिब है कोई बच्चा नाबालिग था और रमजानुल मुबारक के अंदर क्या हो गया बालिग हो गया और उसने रोजा नहीं रखा था वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रखवाते हैं रोजा 10 साल का 11 साल का हो जाए देखिए नमाज के लिए हदीस में बता दिया गया तायीन कर दी गई कि 7 साल का हो जाए मफहूम है तो नमाज सिखाओ और 10 साल का हो जाए तो अरे यार अल्फाज मत बोलो ऐसे हम कहाँ बैठे हैं तंबीह करो हाँ वरना तमें एवडू बोले ने तो 999 हाँ इज नॉट फाइन तो बहरहाल क्या है तो तंबीह थोड़ी वो जो है वो करनी है 10 साल लेकिन रोजे के अंदर सिद्दीक भाई शरीयत ने हदीस आप उठाकर देख लीजिए कहीं हुजूर ने नहीं बताया न कुरान में न हदीस में कि इतनी साल का बच्चा हो जावे तो क्या कराओ रोजा रखवाओ ये नहीं बताया गया क्यों नमाज में तो इतनी ताकत नहीं लगती रोजे में किसकी जरूरत है ना बच्चा सेहतमंद हो बाद बच्चे कैसे होते हैं एकदम सादुल्ला साहिब कमजोर होते हैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक शख्स ने पूछा मफहूम है कि हजरत बच्चे से रोजा कब रखवाया जाए तो फरमाया उसकी सेहत देखो अगर सेहत अच्छी नहीं है तो रोजा मत रखवाओ वरना शाम तक उसका रोजा बन जाएगा नहीं समझे रोजा बन जाएगा रोजा रोजा कबर क्या बन जाएगी कबर जो बन जाएगी આપણે ત્યાં તો નામ થવું જોઈએ મેં તમને 25 વર્ષ પછાડી લઈ જાઉં પેપરમાં આવતું અમારો 7 વર્ષનો છોકરો એમ કે માશાઅલ્લાહ એમ કે એને હું રાખ્યું તો એડવર્ટાઇઝ કરવાની જરૂર છે अरे उस पर तो फर्ज ही नहीं है क्या जरूरत है एडवर्टाइज करने की तो एक આપણી આ બીમારી કે થોભાઈની બોલી પડે ને બીજું દરેક વસ્તુમાં એડવર્ટાઇઝ દરેક વસ્તુમાં શું થવું જોઈએ એડવર્ટાઇઝ જે છે તે થવું જોઈએ આપણે કहाँ ચાલ્યા હતા હવે તો કોઈને ફોન કરીને પૂછવાનું નહીં સ્ટેટસ પર જ જોઈ લેવાનું આઈ મીન હું મારા વેમાં છે મેં અહીંયા ચાલ્યો ત્યાં ચાલ્યો અરે ટોયલેટમાં જાય તેવો લખે हैं हाँ अब तो स्टेटस पे देख लेने का वो सारा उस पर कच्चा चिट्ठा है आज घर में क्या खाया वो भी वहां होता है પછી કે હજમ नहीं થાય पेट में बहुत दुखेंगे मैं क्या तो साला हजम भाई जेवू करे बात हजम नहीं થાય हैं तो वो तूने सब जो है वो बता दिया उसको तो फिर वो नजर लगती है ना वो नजर लगती है ना वो बचाएगा क्यों रखते हो ऐसी चीजें फिर वो सेहत पे असर पड़ती है देखिए इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी हमारा अपना बच्चा है उसको नया सूट पहनाया है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हसीन नजर आ रहा है क्या तालीम दी शरीयत ने हमारा अपना बच्चा है अच्छी नजर भी लग जाती है तो देखो तो क्या बोलो माशाल्लाह ना आसिम भाई माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो वो बोलने की तो ऐसी चीजें रखते हैं फिर लोग हसद भी करते हैं और फिर उसकी वजह से नजर भी जो है वो लगती है तो ऐसी सब चीजों की क्या जो है जरूरत है जब तक स्टेटस नहीं था तो जिंदगी गुजरती थी ना हाँ इसमें भी जो है वो गुजरेगी तो हर चीज जो है वो कहते हैं पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल और आज की हमारी नौजवान नस्ल कहती है जो भी कर फेसबुक पे डाल हैं एफबी पे जो है वो डालो यूट्यूब पे जो है वो डालो खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि रोजे के अंदर उसकी सेहत जो है वो देखी जाएगी बहरहाल चले आखिरी बात सुन ले अब्दुल कादिर चचा के ताल्लुक से जब इंतकाल हुआ वहां से बात चली थी एक बात कहनी थी लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया और अब हमें आज खत्म करना है
ایک چیز آپ بھی گواہی دیں گے، اللہ نے ان کے اندر ایک عجیب وصف رکھا تھا، آپ بھی میری ہاں میں ہاں کہیں. میں نے بڑے میاں کو دیکھا ماشاءاللہ، چاہے موسم سرما ہو، موسم گرما ہو، موسم بارہ ہو، یہاں تک کہ اسنو گرا ہوا ہے، برف، یہ میں اس کا شاہد ہوں. اللہ کا بندہ 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھتا تھا کہ پڑھتے تھے کہ ہیں. اتنی عمر ہو گئی اخیر تک وہ بالکل باہری گاڑی جو ہے وہ رکھتے تھے. تو ایک دن میں نے ان سے کہا الیاس بھائی یہ جو وائٹ گاڑی ہوتی نہیں کہ ٹھوکائیلی ہوتی ہاں گاٹلو بھاگ હેલો બોનેટ હોગી હા તો મેં કે અબ્દુલ કાdir યાર ઠોકાયેલું છે કે આ ઉંમરમાં ઠોકાય નહીં તો હું થાય. મેં કે મને ઠોકી મારે ચાચા કે આ ઉંમરમાં ઠોકાય નહીં તો કઈ બોલવાનો તો એવા જ હતા ને ફટ દેખી કે ઠોકાય નહીં તો હું થાય. તો મેં કે મેં भी કાં છેડા યાર એવાની. तो खैर बहरहाल तो वहाँ रखते थे तो मैं उनको पूछता रहता था हाल चाल, वैसे भी जो भी मिले हम पूछते हैं जहाँ तक हो सके. तो एक दिन मैंने पूछा, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, इंतकाल से यानी वो इंडिया जाने से पहले की बात है, वो इंडिया जो गए उससे पहले. तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा अब्दुल कादिर चाचा કેમ છે તબિયત તમારી સારી છે? તો કે તબિયત તો માશાઅલ્લાહ એમ કે સારી છે, મોસમ એમ કે ટાંટિયા બહુ દુખે, ઘૂંટણ એમ કે બહુ દુખે ટાંટિયા. અને હવે એમ કે આપણી મસ્જિદમાં અસલમાં એમ કે શું છે સીડી ઉતરવાનું ને તો ચઢ ઉતર કરવાનું બહુ અઘરું પડે આ ઉંમરમાં. तो ये एक खाली प्रॉब्लम थी. આગળની વાત તમને સંભળાવવાની. अल्लाह की कसम खुदा के घर में बैठा हूं, उनके जुमले मुझे कहने लगे मौलवी साहब मेरे लिए खाली एक दुआ करना कि अब तक मैं मस्जिद आ रहा हूं और मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह मुझे मरते दम तक मस्जिद की हाजिरी से महरूम न रखे. बस ये दुआ करना मेरे लिए कि मैं मस्जिद क्या है आता जाता रहा हूं. फरमाया कि अब पांव बहुत दर्द करते हैं, घुटने बहुत दर्द करते हैं, चढ़ने उतरने में खास तौर से तकलीफ होती है, तो एक दुआ करो कि मस्जिद की हाजिरी से मैं महरूम न रहूं. तो ये आप देखिए फजर में भी चाहे 4:15 बजे फजर हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, कोई मौसम हो, अल्लाह का बंदा आपको कहाँ मिलेगा? नमाज के अंदर जो है. तो वो नमाज की ऐसी जो है वो पाबंदी थी. तो ये एक चीज़ उनसे जो है वो सीखने की थी. अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी नसीब फरमाए. और हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी मिसाल दी. अल्लाह अब्दुल कादिर चचा के हक में भी इसको कबूल करे और वैसा ही मामला करे उनके साथ, और हम तमाम के साथ भी अल्लाह वैसा मामला करे, बल्कि हर मोमिन के साथ. वो सुन लो, हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह दर्स कुरान देते थे. कुरान की तफसीर एक जिल्द में छप चुकी है और मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह घर पे. उसमें हजरत ने एक जगह जहां कुरान करीम में नमाज का बयान आया है, तो वहां हजरत ने एक बड़ी अच्छी बात जो है वो तहरीर फरमाई है, बयान फरमाई, वो तहरीर है उसमें. तो मेरे तो दिल को लग गई. मैंने कहा अल्लाह हजरत की तहरीर को भी, हजरत के जुमले को कबूल फरमाए और सब के लिए कबूल फरमाए. एक उन्होंने वाकया बयान किया कि उनके गालिबन बड़े भाई या खानदान को कोई आदमी, शायद भाई ही, वो बीमार चल रहे थे और डॉक्टरों की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही थी. बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आप सोनोग्राफ कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन वो बीमारी पकड़ में ही जो है वो नहीं आती. तो बीमारी का पता नहीं चल रहा था. डॉक्टरों के पास भी गए तो फिर इन्होंने सोचा कि अब किसके पास जाए? हकीम के पास. जज़ाकल्लाह. हकीम के पास जो है जाए. तो उन्होंने हकीम का नाम भी लिखा है, मैं भूल रहा हूं. हकीम अजमल खां मशहूर हकीम है रहमतुल्लाह अलैह. तो उनके खानदान के थे वो, दिल्ली में. तो हजरत फरमाते हैं कि हम लखनऊ से कहाँ पहुंचे? दिल्ली जो है वो पहुंचे हकीम साहब के पास. और कहा कि लंबी लाइन जो है वो लगती थी और एक वक्त मुतय्यन था. वक्त हो गया खत्म, मरा जेऊ नहीं कि 8:45 के 9 हो गया है. तो वहां तो वक्त हो गया, अशफाक भाई क्या है खत्म. कि फिर वो देखते नहीं थे, सबको बात मालूम थी. ये नहीं कि भाई हमारा नंबर नहीं आया, भाई तुम्हारी गलती है, जल्दी आना चाहिए था. वक्त हो गया खत्म. हजरत ने फरमाया कि मैंने सोचा है कि यार हम जाए और वक्त हो गया तो लखनऊ से दिल्ली तक है. આપણે તો ફારૂકભાઈ હું કે લાખથી હું ફાટે સિદ્દીકભાઈ? हाँ તમે फाड़ा છે. तो क्या है, लाख से लकड़ी नूरानी भाई जो है इलियास भाई वो फटती है कि लाख जानते हैं ना, वो एक अपने छीणी जगह नहीं इन्हें लाख कहता गालिबन कि वो फटता ना हो तो वो रखो तो क्या फट जाए. तो गोया सिफारिश. क्या है सिफारिश. हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह फलाह दारिन तरकेसर में मोहतमिम थे और बारिश का ज़माना था, मौसम था.
આપણે ત્યાં પોસ્ટકાર્ડ આવતા હતું સમજ ચાચા, તો પોયરો पढ़तो હતો मदरसा तो हशीम भाई हूँ आई वो पोस्टकार्ड वालिद ने लिखा था लड़के के लिए। अब बारिश पोस्टमैन लेकर आया तो उस पर क्या गिर गया, बारिश का पानी। तो आधा पोस्टकार्ड लिखा हुआ आफ्ताब भाई नजर आता है और आधा नजर नहीं आता, पानी है उस पर। तो हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह छुट्टी हो गए गुजर रहे थे और हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब बहुत गौर से देख रहे थे कि यार बारिश का पानी गिरा है, पढ़ने में नहीं आता है। हजरत ने पूछा मौलाना अब्दुल्ला साहिब रहमतुल्लाह अलैह से, मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह, हजरत क्या कर रहे हो? फरमाया कि ये जो है पोस्टकार्ड पढ़ रहा हूँ लेकिन बारिश का पानी जो है वो गिरा है तो नजर नहीं आता क्या लिखा है, आधा मजमून समझ आता है आधा नहीं है, लेकिन अंदाजा ये मेरा हो रहा है कि सिफारिशी मजमून है। तो मौलाना अबरार अहमद साहब दुलेवी रहमतुल्लाह ने फरमाया हजरत छोड़ो यार, सिफारिश पे पहले ही पानी फिर चुका है। समझ आ रहा है, बोलते हैं ना कि सिफारिश पे क्या है, तो कहा इस पे पहले ही पानी फिर चुका है, छोड़ो उसको। तो खैर लाख से આપણે કે લાકડું ફાટે તો મૌલાના મંજૂર નોમાની સાહેબ रहमतुल्लाह अलैह ने लागवग लगाई ने नंबर આવી ગયો। अच्छा अब उनके यहाँ दूसरी एक बात मुसल्लम थी कि जाके मरीज को और जो मरीज के साथ आया है उसको भी एक लफ्ज नहीं बोलने का, एक जुमला नहीं बोलने का, મને એવું થાય તેવું થાય ફલાણું થાય એવું કઈ નહીં, અમે હેલાને બટલાઈને આવ્યા ધીને બટલાઈને આવ્યા કઈ नहीं, चुपचाप वहां रहने का। और हकीम साहब क्या करते थे, कुछ नहीं ज्यादा, खाली यूं नब्ज पे हाथ रखते थे। हकीम यही करते हैं ना, नब्ज पे। तो हजरत मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये बात भी मालूम थी कि उनके सामने बोलने की इजाजत नहीं होती और वो गुस्से हो जाते थे कोई बोलता था तो कहा कि मैंने सिफारिश से इजाजत ले ली कि कुछ बोलने की भी इजाजत मिल जाए। क्यों मरीज को क्या है, तो कहा कि वो भी इजाजत मिल गई कि एक मरतबा बोल सकते हो खाली, दूसरी मरतबा नहीं। तो हजरत ने यूं हाथ रखा, ये नमाज पे मैं आ रहा हूं, नमाज की बात बतानी आपको। यूं हाथ रखा मौलाना हकीम साहब ने, तो वो रिपोर्ट था अंदर देख लिया था कि फला बीमारी है। तो कहा कि नब्ज नहीं कहती, क्या कहा, नब्ज नहीं कहती कि गलत है डॉक्टर की रिपोर्ट। तो हजरत ने वो इजाजत ली थी, तो हजरत ने कहा कि हजरत फला बड़ा डॉक्टर है, वो ऑपरेशन का भी कह रहा है, उसको जो है वो कह, कहा आपको बोला ना नब्ज नहीं कहती, चलो जाओ, नब्ज नहीं कहती, खत्म, आगे मुझे कुछ सुनना नहीं है। और बात वैसी ही थी कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। बाद मतलब रिपोर्ट में भी गलती जो है वो हो जाती है, समझ आए कि नहीं। तो वो रिपोर्ट गलत थी, बाद में फिर पता चला। तो हकीम साहब की बात सही थी कि नहीं गलत है, जो बीमारी कह रहे हैं वो बीमारी नहीं है। और किससे पहचान लिया, खाली सेकंड में नंबर आया, नब्ज नहीं कहती, चलो जाओ, कुछ नहीं। अब सुनो अगली बात, हुजूर हजरत फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है, आपको भी पता है, सबसे पहले कयामत में किसका हिसाब होगा, नमाज का हिसाब होगा, है ना, सबसे पहले नमाज का। रोजे महशर के जहां गुदाज बुवत अव्वनी पुरशिश के नमाज बुवत, शायर कहता है फारसी का। हजरत मौलाना अल्लाह जज़ाए खैर दे क्या मिसाल बयान की, फरमाया कि हकीम साहब ने क्या किया, भाई खाली नब्ज पे हाथ रखा, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, और क्या कहा, नब्ज नहीं कहती। फरमाया अल्लाह ताला भी कल कयामत में यही करेंगे कि नमाज का पहले हिसाब होना है। जो पक्का नमाजी होगा, 5 वक्ता नमाज पढ़ी होगी, अल्लाह ताला देख लेगा, नमाजी है, जाओ जन्नत, अगला हिसाब ही नहीं होगा। और अगर नमाजी नहीं है तो पकड़े गए। मैंने कहा ना अल्लाह उनकी बात को कबूल करे, हैं, वरना आप कहेंगे कि मौलवी साहब आ તમે કાથી લાવ્યા, કે વહી આવી, ભાઈ વહી નહીં આવી, તમારે હવે તમારે એવું લાગતું છે કે તમારો હિસાબ જ થાય તો તમે લ્યો यार, हैं, हम तो अच्छा ही घुमान रखेंगे, समझ आया कि नहीं। तो कहा कि अल्लाह ताला अपना जेवा थोड़ी, वो तो गफूर रहीम है। और कहते हैं रहमत हक बहाना नहीं जोए, बहा नहीं जोए। तो फरमाया कि सिर्फ नमाज सही है तो क्या है, जाओ जन्नत में, अगला हिसाब नहीं होगा। तो माशाअल्लाह बड़े मियाँ की क्या है, 5 वक्ता नमाज थे, पाबंद थे, अल्लाह मुझे भी पाबंदी नसीब फरमाया, आपको भी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।